تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق اللہ. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 سے لے کر 12 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فہم قرآن و سنت تلاش ہے اس کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے پیش نظر کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، آپ کو کیوں جمع کیا ہے. آپ کو صبح کی ان بابرکت گھڑیوں میں جبکہ بہت سارے لوگ اس وقت بھی نیند کی آغوش میں، کوئی اے سی میں سویا ہوا ہے، کوئی ٹھنڈی ہوا کے نیچے آرام کر رہا ہے، کچھ اپنے کام کاج اور مصروفیات میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کو کیوں تکلیف؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں اس مقصد کو بیان فرمایا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. خود آگ سے نہیں بچنا، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، راعی ہے، چرواہا ہے، نگہبان اور نگران ہے، اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے. اس لیے اگر میں گھر کا سربراہ ہوں، اگر میں خاندان کا سربراہ ہوں، اگر میں برادری کا سربراہ ہوں، اگر میں گلی اور محلے کا سربراہ ہوں، جہاں میری سربراہی موجود ہے، مجھے چاہیے کہ میں خود بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤں اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جو میرے زیر اثر ہیں، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش. مقصد ہے قیامت والے دن ہم جنت میں جانے والے بنتے ہیں اور جہنم سے بچتے ہیں. اور جہنم کی آگ کو برداشت کون کر سکتا ہے؟ دنیا کی آگ، اس وقت کی گرمی، حالانکہ ابھی سورج بالکل طلوع ہو رہا ہے، دھوپ ہم تک نہیں پہنچی، ہم اس وقت یہاں بیٹھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. ہوس کو ہم برداشت نہیں کر رہے، پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں. جب سورج بالکل سر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، کوئی آدمی دھوپ میں کھڑا نہیں ہوتا. یہ تو دھوپ کی بات ہے، یہ تو ہوس کی بات ہے. تو آگ میں کون ہاتھ رکھے گا؟ آگ میں کون جلے گا؟ پھر جہنم کی آگ، جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں،
ہم چاہتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن جنت میں جانے والے بن جائیں اور جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جائیں. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، ذہن میں رکھیں جس طرح اولاد کے بغیر، بیوی کے بغیر، خاندان کے بغیر، برادری کے بغیر معاشرہ مکمل نہیں ہوتا، معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ساتھ ہی ان کی زوجہ محترمہ اما حوا کو پیدا کیا، پھر اس سے ایک انسانیت بڑی پھلی پھولی معاشرے تشکیل پائے. اسی طریقے سے جس طرح اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، جس طرح اپنی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس طرح اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی برادری کو، اپنی گلے اور محلے کو بھی سنوارنے کی ضرورت ہے. اگر میں یہ چاہوں گا کہ میں خود سنور جاؤں اور دوسروں کو سنوارنے کی کوشش نہ کروں، اس طرف توجہ نہ دوں، تو پھر میں خود بھی نہیں سنور سکتا اور خود بھی بگڑ جاؤں گا. گلی محلے میں اگر گندگی ہو اور انسان اپنے گھر کو، اپنے صحن کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے، تو وہ جو گلی محلے کے اندر گندگی ہوتی ہے وہ ہمارے صحنوں میں آ جاتی ہے، ہمارے کمروں میں آ جاتی ہے، ہمارے گھروں میں آ جاتی ہے. ہمارے گھر بھی صاف ستھرے نہیں رہ سکتے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی اصلاح ہو تو اپنی اصلاح کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اہل و عیال کی فکر کریں، اہل و عیال کی اصلاح پر توجہ دیں، اہل و عیال کو اس دین کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں. اس لیے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی جو وصیت فرمائی وہ یہی تھی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر. اور نماز بنیادی ذریعہ ہے، نماز بنیادی چیز ہے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دے، اور جب اس کی عمر 10 سال ہو جائے نماز نہ پڑھے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے سختی کے ساتھ نماز. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب یہ طے کرنے، اور یہ جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات مبارکہ میں سب سے پہلا درس اور سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جانی چاہیے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی اصلاح کی فکر کرنی ہے. اور اس درس میں ہم خود شریک ہو رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو اس درس میں لانا نہ بھولیں. ویسے بھی آج کل سکولوں کالجوں میں چھٹیاں کوئی اتنا بڑا پرابلم اور مسئلہ نہیں ہے، بچے بھی سکون کے ساتھ آ سکتے ہیں، گھر والے بھی سکون کے ساتھ آ سکتے ہیں. اور جو لوگ دکانوں پر جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی قدرے دیر سے جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ سے پہلی گزارش یہی کروں گا کہ ہم سب کوشش کریں کہ ہم اس درس میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ شریک ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ شریک ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ شریک ہوں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ شریک ہوں، اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں کے ساتھ، بھانجے اور بھانجیوں کے ساتھ شریک ہوں، تاکہ جس طرح میں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے خواہش مند ہوں، میری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میرے گھر والے بھی جہنم کی آگ سے بچیں. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، اور جہنم کا ایندھن لوگ بھی ہوں گے، پتھر بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان معبودان باطلہ کو بھی جہنم میں داخل کر دیں گے جن کو انسان پوجتے تھے، جن کی انسان عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جن پر ہم نے تقیہ لگایا ہوا تھا، جن پر ہم نے بھروسہ کیا ہوا تھا، جن کے بارے میں ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ ہمیں قیامت والے دن اللہ سے بچا لیں گے، چھڑا لیں گے، جہنم سے بچا لیں گے، یہ تو خود جہنم میں جا رہے ہیں، ہمیں کیا بچائیں.
इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह फरमाते हैं वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, उसका ईंधन लोग भी हैं और पत्थर भी हैं। अलैहा मलाइका, और जहन्नम के ऊपर फरिश्ते होंगे। गिलाज़ुन शिदादुन, जिनकी शक्लें भी बड़ी सख्त, जिनके मिजाज भी बड़े सख्त, जिन शक्ल से भी डर लगेगा, मिजाज से भी डर लगेगा। और अल्लाह ताला ने इस चीज को इसलिए यहां बयान फरमाया है कि किसी इंसान के ज़हन में ये बात होनी नहीं चाहिए कि मैं जहन्नम से निकल जाऊंगा, मैं जहन्नम से भाग जाऊंगा, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। क़यामत वाले दिन कौन जहन्नम से भागेगा? फरिश्तों को देखकर तो वैसे ही वो डर जाएंगे, वैसे ही दबक जाएंगे। आपने देखा होगा जो आदमी चौकीदारा करता है वो जितना बारूद होता है उसका असर उतना ज्यादा होता है, और जितना कमजोर होता है उसका कोई असर नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ ये बयान फरमाया कि क़यामत वाले दिन जहन्नम के ऊपर जो फरिश्तों की शक्ल में दरोगे होंगे, शक्ल के लिहाज से भी और मिजाज के लिहाज से भी बड़े सख्त होंगे। ला यअसून अल्लाह, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। मा अमरहुम, जो अल्लाह उनको हुक्म देता है। कैसे हो सकता है कि अल्लाह उनको हुक्म दे कि फिरौन को जहन्नम में दाखिल कर दो और फिरौन को गिरफ्तार न करे, फिरौन को पकड़े नहीं? ये दुनिया की अदालतें नहीं है, ये दुनिया का सिस्टम नहीं है कि जहां बड़े पर हाथ डालते हुए लोग 100 मरतबा सोचे। हालांकि चाहे जितना माल लूटा हो, जितनी करप्शन की हो, फिर भी हीले बहाने तलाश करें किसी तरीके से बच जाए। ये अल्लाह की अदालत है, और अल्लाह की अदालत में कोई आदमी कवि नहीं है, कोई आदमी बहादुर नहीं है, कोई आदमी जुर्रतमंद नहीं है, कोई भागने की कोशिश नहीं करता। और अगर वो भागने की कोशिश करेगा फरिश्ते उसको दबोच लेंगे, क्योंकि फरिश्तों ने अल्लाह की फरमाबरदारी की। ये जो हमारा नजरिया है, ये जो हमारे माशरे में इस तरह की चीजें फैलाई जाती हैं कि फलां के तो खैर फलां के जरिए जहन्नम से बच जाओगे और जन्नत में चले जाओगे। अगर ये बात होती तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये ना फरमाते कि फातिमा ये ना समझना नबी की बेटी हूं इसलिए जन्नत में जाऊंगी, नहीं, अपने अमाल के बलबूते पर जन्नत में जाऊंगी। ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे उन चीजों में जो अल्लाह ने उनको हुक्म दी हैं। व यफ़अलून मा युअमरून, वो तो वही करेंगे जो उनको हुक्म दिया जाएगा, जो अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म मिलेगा वही वो उसको सरंजाम देंगे, उसको करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं और यकीनन जाना चाहते हैं, अगर हम जन्नत की मुतलाशी और तलबगार न होते तो इस दर्स में न आते, अपने आराम को न छोड़ते, इसके लिए वक्त न निकालते। तो अगर हम जन्नत के मुतलाशी हैं और जहन्नम से बचना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या है? ओ अनफुसकुम व अहलीकुम, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ, दूसरों की भी कोशिश करो, दूसरों की भी फिक्र करो। मुसलमान सिर्फ अपनी फिक्र नहीं करता, अपने बारे में फिक्रमंद नहीं होता। मुसलमान पहले दूसरों के बारे में फिक्रमंद होता है, बाद में अपने लिए फिक्र करता है, अपने बारे में फिक्र करता है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू, ए काफिरो, ला तअतज़िरुल यौम, आज वाले दिन कोई माजरत करो। माजरत का कबूल होना तो दूर की बात है, माजरत करो ही ना। क्यों? इसलिए कि हमने तुम्हें दुनिया में भेजा और कायनात की सारी नेमतें तुम्हें दी, बावजूद इसके कि तुम हमारा इनकार कर रहे थे। हम चाहते तो तुमसे नेमतें छीन लेते, हम चाहते तो तुम्हें पानी ना देते, तुम्हारे लिए हवा को बंद कर देते, तुम्हारे लिए खुराक को बंद कर देते, लेकिन हमने इस तरह नहीं किया। बल्कि बसा औकात मुसलमानों के मुकाबले में काफिरों के पास नेमतें ज्यादा, और आज तुम कोई माजरत करने लगो, कोई उज़र पेश करने लगो। आज वाले दिन कोई माजरत, तुम्हारी कोई माजरत कबूल होगी नहीं कि अल्लाह हमें पता नहीं था, या अल्लाह हम तो हजात की तरफ आना चाहते थे लेकिन फलां की वजह से हम जहन्नम की तरफ चले गए, नाफरमानी की तरफ चले गए। ऐसा नहीं होगा। या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू, ए काफिरो, ला तअतज़िरुल यौम, आज वाले दिन माफ़रत न करो। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तअमलून, आज तो तुम्हें उसी की जज़ा और बदला दिया जाएगा जो दुनिया में तुम करके आए हो। अगर
इसकी जगह तुम अच्छे अमाल करके आते तो तुम्हारे लिए जन्नत होती। आज तुम बुरे अमाल के साथ आए हो, तुला महाल अदल और इंसाफ का तकाजा ये है कि तुम्हारा ठिकाना जहन्नम हो और आज वाले दिन माजरत कबूल नहीं है। और ये ज़हन में रखें, माजरत भी उसी की कबूल होगी जिसके अंदर ईमान है, ईमान की रमक है, मुसलमान है, ईमान के साथ जुड़ा हुआ है। जिसके अंदर ईमान नहीं है उसकी कोई माजरत, उसकी कोई नेकी नहीं है, उसका कोई खैर का काम नहीं है। अगर बज़ाहिर दुनिया में वो कोई खैर का काम करता भी है, जलजला आ गया मुसलमानों को सपोर्ट कर दिया, सैलाब आ गया मुसलमानों के साथ तावन कर दिया, कहीं मुसलमानों की खिदमत कर दी, मुसलमान ममालिक को खुराक पहुंचा दी, कहीं को तावन कर दिया, अल्लाह ताला दुनिया में उसका सिला उनको दे देते हैं और आखिरत वाले दिन ऐसे लोगों के लिए कोई सिला नहीं है। क्यों? इसलिए कि असल चीज ईमान उनके अंदर मौजूद है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह से सच्ची तौबा, ये बड़ी आफत, अल्लाह से सच्ची तौबा। ईमान वालों को अल्लाह फरमा रहे हैं, ईमान वालों तुम गलतियां करते हो, गुनाह करते हो, जराइम करते हो, कसूर करते हो, अल्लाह से माफी मांगो और सच्ची माफी मांगो। सच्ची माफी क्या? अहादीस मुबारक में आता है सच्ची माफी ये है कि एक तो इंसान इखलास के साथ कि अल्लाह में माफी मांगा। दूसरा ये है कि जिस गुनाह पर अल्लाह से माफी मांग रहा है अमलन उस गुनाह को छोड़ो। तीसरी चीज ये है कि अंदर कभी अज़म और तहय्या करे कि मैं इस गुनाह से बचूंगा, ये नहीं कि अभी छोड़ दिया और फिर उसको कर दिया, नहीं, अंदर करीब अज़म और तहय्या करे कि मैंने इस गुनाह को नहीं किया। और चौथी चीज ये है कि अगर उस गुनाह का ताल्लुक हकूकुल इबाद से है, किसी का हक मारा है, किसी का माल गस्ब किया है, किसी का माल चुराया है, किसी को धोखा दिया है, किसी की जमीन के ऊपर, प्लाट के ऊपर नजायज कब्जा किया है, तो जब तक वो हक वापस नहीं करेगा उसकी तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इद्दआ मा लैसा लहू फलैसा मिन्ना फलियतबव्वा मक़अदहू मिनन नार। फिर इस आदमी ने उस चीज का दावा किया जो हकीकत में उसकी नहीं है, फलैसा मिन्ना, उसका हमसे कोई कर रहा, फलियतबव्वा मक़अदहू मिनन नार, उसको चाहिए अपना ठिकाना आग से बना ले। ये होशियारी नहीं है, ये चालाकी नहीं है कि किसी बेवा और यतीम का प्लाट पड़ा हुआ था, आप मुअस्सर आदमी थे, आपने कब्जा कर लिया और पूरी जिंदगी अदालतों में धक्के खाते रहे और आप मजे कर रहे। नहीं, अपने आप को जहन्नम की तरफ ले जाना है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्जा करना तो दूर की बात है, जिस आदमी ने इस चीज का दावा भी किया जो हकीकत में उसकी नहीं है, फलैसा मिन्ना, उसका हमसे कोई तल्लुक नहीं, फलियतबव्वा मक़अदहू मिनन नार, उसको चाहिए अपना ठिकाना आग से बना। लंबी हदीस है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जानते हो मुफलिस कौन है? जानते हो? सहाबा ने अर्ज़ की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीब आदमी वो है जिसके पास दिरहम दिनार ना हो, पैसे ना, हमसे कोई पूछे तो हम भी तो यही जवाब देंगे ना, हम भी यही कहेंगे, गरीब वो है जिसके पास पैसा ना हो। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत वाले दिन इस हाल में आएगा, नमाजें, रोजा, हज, ज़कात, ये सारे फराइज़ इसने अदा किए हो, लेकिन किसी का हक मारा हो, किसी को गाली दी हो, किसी पर तोहमत लगाई हो, और क़यामत वाले दिन वो हक वाले भी आएंगे, अल्लाह की अदालत में फैसला होगा। वहां तो नेकियों और बदियों का तबादला होगा, ज़हन में रखें, दिरहम दिनार का तबादला नहीं, नेकियों और बदियों का। अल्लाह ताला इस शख्स की नेकियां उनको दे दें जो हक वाले थे, हक का मुतालबा करने वाले थे, अल्लाह इस शख्स की नेकियां उनको दे देंगे, और जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और अभी तक मामला बाकी होगा, अल्लाह उनके गुनाह इसके पलड़े में डाल के इसको जहन्नम में दाखिल कर दे। इसलिए किसी का हक मारना मामूली चीज नहीं है। नमाज अपनी जगह, रोजा अपनी जगह, ज़कात अपनी जगह, उम्रा और हज अपनी जगह, जिक्र और अज़कार अपनी जगह, कुरान मजीद की तिलावत अपनी जगह, लेकिन
अगर इन चीजों की मौजूदगी में आप किसी का हक मार रहे हैं तो फिर इस हदीस मुबारक की रोशनी में सोच लें और देख लें कि अल्लाह के यहाँ क्या सजा है। तो इसलिए सच्ची तौबा करने की जरूरत, सच्ची तौबा के अंदर इखलास पैदा करने की जरूरत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु मिनल ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, कि जो आदमी गुनाहों से माफी मांग लेता है वो ऐसे है कि जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। अल्लाह ताला उस गलती को उसके अमाल नामे से खुरच के खत्म कर देते हैं, हमेशा के लिए खत्म। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह से सच्ची तौबा करो। और हम सब जितने भाई और बुजुर्ग, माएँ बहनें और बेटियां इस दर्स में मौजूद हैं, हम सब अल्लाह से सच्ची तौबा, इखलास पर मबनी तौबा करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, मुमकिन है कि तुम्हारा रब तुम्हारी गलतियों को माफ कर दें। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और अल्लाह ताला तुम्हें उन बागात में दाखिल करें जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। एक तो अल्लाह इस तौबा की वजह से तुम्हारी गलतियां माफ कर देंगे, और दूसरा फायदा क्या होगा, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिसके नीचे पाकीज़ा शराब की नहरें, शहद की नहरें, दूध की नहरें, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, जो तुम चाहोगे, जो पसंद करोगे वो चीज तुम्हें मिलेगी। यौम ला युख्ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहू, और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत ज़हन में रखें। और उन लोगों को अल्लाह इज्जत देंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं। इंसान इज्जत का भूखा है, इस्तिकबाल और प्रोटोकॉल का भूखा है। हर आदमी ये चाहता है कि मुझे इज्जत दी जाए, मेरा इस्तिकबाल। अलमिया ये है कि लोग इस्तिकबाल कहकर करवाते हैं कि हम आ रहे हैं, आपने हमारे लिए बैनर लगाने हैं, आपने हमें इज्जत देनी है, वसाइल भी अपनी जेब से देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत वाले दिन तो तुम्हारा इस्तिकबाल होगा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो कहने की वजह से नहीं होगा, अल्लाह पर अल्लाह के फरिश्ते खुद तुम्हारा इस्तिकबाल करें, तुम्हें इज्जत दें। अगर दुनिया में मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते हो तो उसके लिए यही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तुम्हारे लिए रास्ता मुतअय्यन किया है उस रास्ते को इख्तियार करो। इसलिए फरमाया यौम ला युख्ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहू, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इज्जत देंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाए हैं उनको। नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, उनका नूर दौड़ रहा होगा उनके आगे भी और उनकी दाईं साइड, हर तरफ नूर ही नूर, हर तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। क्यों? इसलिए कि दुनिया में नूरानी जिंदगी गुजारी, दुनिया में नूर के मुताबिक जिंदगी गुजारी, दुनिया में कुरान और सुन्नत जो नूर का मंबा और सरचश्मा है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी। इसलिए क़यामत वाले दिन भी नूर होगा। और जो लोग जहालत में जिंदगी गुजारते हैं, हर वो इल्म जाहिल है, हर वो आलिम जाहिल है, हर वो इल्म जहालत पर मबनी है जिसमें अल्लाह की पहचान नहीं है, जिसमें अल्लाह के नबी की पहचान नहीं है। जो इल्म कुरान और सुन्नत और दीन से इंसान को बागी बनाता है और सरकश बनाता है, वो इल्म नहीं है, वो नूर नहीं है, वो रोशनी नहीं है, वो जहालत है। और ऐसा शख्स दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल है। इसे कुरान और सुन्नत पहचान है, जरिया है। जब मैं इल्म के जरिए उस रब को नहीं पहचान सकता जिस रब की नेमतों को मैं इस्तेमाल करता हूं, तो इल्म वो पहचान क्या है? इसलिए अल्लाह फरमाते हैं नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, उनकी रोशनी दौड़ रही होगी उनके आगे भी और उनकी दाईं साइड पर भी। यक़ूलूना, और अल्लाह से गुजारिश करेंगे, अल्लाह से अर्ज करेंगे, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना, ऐ अल्लाह हमारे लिए हमारी रोशनी को मुकम्मल कर दे। मुफस्सिरीन ने लिखा है इसका मतलब यह है कि अल्लाह जन्नत में दाखिले तक ये रोशनी बरकरार रहे, हम इसी रोशनी में जन्नत में जाएं। ये रोशनी बुनियादी चीज है और ये रोशनी आपको मिली, इस रोशनी में आप जिंदगी गुजार दें। इसलिए फरमाया अतमिम लना नूरना, हमारे लिए हमारी रोशनी को मुकम्मल कर दे, वग़फिर लना, और हमें बख्श दे, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक आप हर चीज पर कादिर हैं,
या अय्युहन्नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के खिलाफ जिहाद करो। जिहाद काफिरों के खिलाफ जिहाद बिस्सैफ होगा, तलवार और असले के जरिए जिहाद होगा। मकबूजा कश्मीर में अगर काफिर मुसलमानों का जीना दूभर कर देंगे तो वहां तलवार उठाई जाएगी, उनका मुकाबला किया जाएगा। फलस्तीन में अगर मुसलमानों पर अरसे हयात तंग कर दिया जाएगा तो वहां तलवार उठाई जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह फरमाने, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिदिल कुफ्फार, काफिरों के खिलाफ जिहाद करो। और ये जिहाद अमन की निशानी है, ज़हन में रखें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर जिहाद ना हो दुनिया फसाद से बच जाए। इसका फसाद के साथ कोई तल्लक है, इसका बिगाड़ के साथ कोई तल्लक है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई जिहाद, कोई आदमी अगर ये समझता कि मैं किसी मुसलमान को कत्ल कर दूं, किसी इमाम बारगाह पर, किसी मस्जिद पर, किसी मज़ार पर, किसी पब्लिक मकाम पर हमला करूं और मैं इनको ठिकाने लगा दूं, दुनिया में इससे बड़ा बिगाड़ कोई नहीं है, ज़हन में रखें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने बगैर किसी वजह के एक नफ्स की जान ली फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, वो ऐसे है गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा, और जिसने एक इंसान को जिंदा किया फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, वो ऐसे है गोया उसने पूरी इंसानियत को जिंदा कर दिया। लेकिन काफिरों के खिलाफ जिहाद होगा और इस जिहाद को सपोर्ट करना पड़ेगा, इसकी मुआवनत करनी पड़ेगी, इसकी मदद करनी पड़ेगी। जाहिदुल कुफ्फार, अल्लाह अपने नबी से फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के खिलाफ जिहाद करो, वल मुनाफिकीन, और मुनाफिकीन के खिलाफ जिहाद करो। और मुफस्सिरीन ने लिखा है मुनाफिकीन के खिलाफ जो जिहाद होगा वो जुबान के जरिए होगा, बिल्लिसान, जुबान के जरिए इनके खिलाफ जिहाद होगा। इनकी पॉलिसियों पर हम तनकीद करेंगे, इनकी पॉलिसियों को हम लोगों के सामने बयान करेंगे। मुनाफिक कौन है? मुनाफिक वो है जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं लेकिन उनका आलाकार बना, उनकी पॉलिसियों को यहाँ रवाज देता है, उनकी पॉलिसियों को यहाँ लाता है, वो मुनाफिक। अल्लाह फरमा रहे हैं कि नबी काफिरों के खिलाफ भी जिहाद करना है और मुनाफिकीन के खिलाफ भी जिहाद करना है, वग़लुज़ अलैहिम, और इन पर सख्ती करनी है। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सख्ती काफिरों के खिलाफ तो ये है कि इनकी गर्दनें उड़ाओ, और मुनाफिकीन के खिलाफ सख्ती ये है कि दुनिया में इनके लिए कोई प्रोटोकॉल ना, कोई इज्जत ना हो, ये तुम्हारे इमाम न बने, ये तुम्हारे लीडर न बने, ये तुम्हारे हुक्मरान न बने, ये तुम्हारे पेशवा न बने, दुनिया में इनके लिए जिल्लत हो। हमारी कौम का आदमी जानते हुए भी ऐसे लोगों को इमाम बनाते, ऐसे लोगों को लीडर बनाते, ऐसे लोगों को हुक्मरान बनाते, फिर अपने आप को पीटते, अपने आप को कोसते, फिर कहते हैं कि ये आजाद है, ये लोड शेडिंग का आजाद हमसे खत्म नहीं होगा। भाई जब तक लोगों को आप अपनी गर्दनों पर मुसल्लत करेंगे तो फिर यही कुछ होगा जो आप देख रहे हैं। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, काफिरों के खिलाफ भी जिहाद करो और मुनाफिकीन के खिलाफ भी जिहाद करो। वग़लुज़ अलैहिम, और इन पर सख्ती करो। वमावाहुम जहन्नम, और इनका ठिकाना जहन्नम है। वबिस्सल मसीर, और वो बुरी जगह और बुरा ठिकाना। आगे वाली जो आयात मुबारका है उन आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने 4 औरतों का जिक्र फरमाया है। मैं इख्तिसार के साथ इसको बयान कर रहा हूँ। 4 औरतें, पहले मैं थोड़ी सी तफसील बयान कर देता हूँ, फिर तर्जुमा भी आपकी खिदमत में पेश हो जाएगा। 2 औरतें वो हैं कि जो अंबिया की बीवियां हैं लेकिन अंबिया पर ईमान नहीं लाई। आप देखें ना, अल्लाह के यहाँ बेलाग इंसाफ हो रहे। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अगर नूह अलैहिस्सलाम के सामने गर्क हो गया तो नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा सके, और जब बाद में नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से गुजारिश की कि अल्लाह मेरा बेटा था और तूने मुझसे वादा किया था कि मैं तेरे अहल को बचा लूंगा और मेरा बेटा मेरे सामने गर्क हो गया, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नहु लैसा मिन अहलिक, उसका तेरे अहल से कोई तल्लक नहीं था। इन्नहु अमलुन गैर सालिह, वो तो गैर सालिह अमल। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? गैर सालिह अमल था। इसी तरीके से नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अगर अपने शोहरों पर जो नबी थे ईमान न लाई तो देखें अल्लाह के यहाँ उनका ठिकाना है। और ये जरूरी भी नहीं है, ये बात नहीं,
अपनी तरफ से कोशिश और मेहनत तो करनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा पर तो अमल करना है। लेकिन बस औक़ात ऐसा हो जाता है कि मेहनत के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिलता, घर वाले भी साथ नहीं देते, औलाद भी साथ नहीं देती, लेकिन आप अल्लाह के यहाँ कामयाब। अब नूह अलैहिस्सलाम ने क्या अपनी बीवी पर मेहनत नहीं की होगी? लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी पर मेहनत नहीं की होगी? बहुत ज्यादा की होगी, लेकिन उसके बावजूद अगर रिजल्ट बरअक्स निकला है तो नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के यहाँ कामयाब है, लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के यहाँ कामयाब है। और फिर ये भी कि बस औक़ात ऐसा भी होता है कि ज़ालिम के घर में बैठने वाली, ज़ालिम के अक़द में रहने वाली खातून ज़ालिम का साथ नहीं देती। ये हमारे लिए भी नमूना है। अगर हमारे घरों में खुदा न खास्ता अगर इस तरह का माहौल हो कि हमारी बेटियों, माँ और बहनों को उनके शोहर, उनके सरपरस्त दीन के काम से रोकें, तो फिर आइडियल देखें, नमूना देखें, इस काम से रुकना नहीं। उनकी इताअत और फरमाबरदारी मारूफ में करनी है, उनके हकूक अदा करने हैं, लेकिन दीन के मामले में कोई कंप्रोमाइज। और फिर आप देखें मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिक्र फरमाया और इतनी इज्जत अल्लाह ने दी है मरियम अलैहिस्सलाम। और फिर उनके वतन से अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो दुनिया में अंबिया के लिहाज से तरतीब में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, यानी सेकंड लास्ट नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। और फिर आसमानों पर अल्लाह ने उठाया, कुर्ब क़यामत फिर जमीन पर आएंगे, फिर इस जमीन को अदल से इंसाफ से भर देंगे। दो किरदार, दो ख्वातीन वो हैं जो अल्लाह की नाफरमानी में रही, उनका रिजल्ट क्या निकला। और दो ख्वातीन वो हैं जिन्होंने अल्लाह की फरमाबरदारी को इख्तियार किया, उनका रिजल्ट क्या हुआ। इसलिए हमारी माओ, बहनों और बेटियों को इन्हीं आखिरी दो ख्वातीन को अपने लिए नमूना बनाना है, अपने लिए आइडियल बनाना है। और इंशाअल्लाह इनको अपने लिए नमूना और आइडियल बनाकर वो दुनिया में भी कामयाबी हासिल करेंगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। इस हवाले से तो इंशाअल्लाह एक तफसीली दर्स भी होगा, वो भी आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन अभी मैंने एक इख्तिसार के साथ बात की है, वक्त क्योंकि मुकम्मल हो रहा है, मैं अपनी गुफ्तगू को भी समेट रहा हूँ, लेकिन तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत। आप इन काफिरों के सामने नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का तज़किरा कीजिएगा बतौर मिसाल। कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन, वो हमारे दो नेक बंदों के अक़द में थी, निकाह में थी। फ़ख़ानताहुमा, उन दोनों ने अपने शोहरों के साथ खयानत की। खयानत की मुराद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ईमान नहीं लाई थी। मुफस्सिरीन ने लिखा है और कोई खयानत नहीं, ये नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह वो किसी बदकारी के अंदर मुब्तला या किसी और खयानत के अमल में मुब्तला थी। नहीं, खयानत यही थी कि शोहर नबी है और बीवी उस नबी पर ईमान नहीं ला रही। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फलम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ, वो दोनों नबी अल्लाह से उनको ना बचा सके, कोई काम ना कर सके। वक़ील उदख़ुलन नार मअद दाख़िलीन, और उनसे कह दिया गया कि जिस तरह दूसरे लोग जहन्नम में दाखिल हो रहे हैं तुम भी। अल्लाह के यहाँ नस्ब की, रिश्तेदारी की, हसब की, माल की कोई अहमियत। अल्लाह के यहाँ अगर किसी चीज की अहमियत है वो ईमान है। और अगर ईमान शौहर और बीवी में नहीं है, बाप और बेटे में नहीं है, भाई और भाई में नहीं है, तो आपस में ताल्लुक, रिश्तेदारी। इस्लामी शरीयत में तो आप जानते हैं, अगर शौहर मुसलमान हो गए, पहले दोनों गैर मुस्लिम थे, उनका आपस में निकाह, उनमें से एक मुसलमान हो गया, निकाह खत्म। क्यों? इसलिए कि असल रिश्ता ईमान का रिश्ता, और इसी रिश्ते को अल्लाह ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूत करने का हुक्म दिया है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन, इन ईमान वालों के सामने बतौर मिसाल फिरौन की बीवी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाए। इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह, जब उन्होंने कहा कि मेरे रब मेरे लिए जन्नत में घर बना दे, वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमली, और मुझे बचा ले फिरऔन और उसके अमल से, वनज्जिनी मिनल क़ौमि ज़ालिमीन, और मुझे बचा ले ज़ालिम कौम से। और ये ज़हन में रखें, मर्द का अपना अमल, औरत का अपना।
दोनों एक दूसरे के अमल में शरीक नहीं है कि मर्द ने अगर नेकी की है तो हिस्सा औरत को भी मिलता है, औरत ने अगर नेकी की है तो मर्द को हिस्सा मिलता है। नहीं, अगर औरत नाफरमानी कर रही है और मर्द फर्माबरदारी पर कारबंद है तो अल्लाह ताला नाफरमानी की सजा औरत को देंगे, मर्द उसमें शामिल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मर्द नाफरमानी कर रहा है तो औरत उससे बरी है। इसलिए तो मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई हूं, मैं तो फर्माबरदारी की जिंदगी गुजार रही हूं और गुजारना चाहती हूं, लेकिन फिरौन की हालत यह है, इसलिए मुझे फिरौन से भी बचा ले और फिरौन के करतूतों से भी बचा ले, वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, और मुझे जालिम कौम से निजात दे दे। व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, और इनके सामने इमरान की बेटी मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिएगा, अल्लती अहसनत फरजहा, जिन्होंने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। और सबसे बड़ी खसूसियत एक औरत की यही है कि वो अपने हया की हिफाजत करे, अपनी हया की हिफाजत करे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अपनी इस्मत की हिफाजत करे। इसलिए अल्लाह ताला ने बतौर खास इस खूबी को बयान फरमाया है कि मरियम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनके शौहर नहीं और उनके बतन से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। सूरह मरियम आप पढ़ें, अल्लाह लोगों ने इल्जामात लगाए, लेकिन अल्लाह ने गवाही दी, ईसा अलैहिस्सलाम ने गवाही दी कि इस दुनिया में मरियम अलैहिस्सलाम से ज्यादा पाकीज़ा कोई खातून गुजरी, अहसनत फरजहा, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। फनफखना फीही मिन रूहिना, हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी। वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा, उन्होंने अपने रब की कलिमात की तस्दीक की। व कुतुबिही, और रब की किताबों की तस्दीक की। वकानत मिनल क़ानितीन, और वो इताअत शआर लोगों में से शामिल। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज का दर्स हमारा मुकम्मल हुआ है, लेकिन वो जो पहली बात मैंने आपके सामने रखी है दोबारा फिर रख रहा हूं, यह खूबसूरत मजलिस है। हदीस मुबारका में क्या आपको इस कायनात में इससे बेहतर मजलिस को नहीं, ये ज़हन में रखें। फरिश्ते इस मजलिस को अपने परों के साथ ढांकते हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा जरूर बेटों को लाएं, बच्चों को लाएं। बड़ी तादाद में यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे कौम के मेहमान हैं, इन बच्चों की हौसला अफजाई करें, उनको साफ लेकर आएं, लेकिन इसके साथ साथ कोशिश करें कि आप में से हर भाई और आज जुम्मा आप मसाजिद में लाना कर सकते हैं, दावतनामे तकसीम कर सकते हैं, डोर टू डोर जा सकते हैं, फेसबुक के जरिए, मोबाइल के जरिए, नेट के जरिए आप इस प्रोग्राम की दावत ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में 10 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन को जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी, और उनको हम कहते हैं अशरा मुबशरा। 10 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन ऐसे हैं कि जिनको इस दुनिया में जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई, तो हम भी 10 पर अमल कर लें, उसी निस्बत से हम भी 10 पर अमल कर लें कि हम में से हर भाई और बुजुर्ग कम अज कम, माँ बहन और बेटी भी कम अज कम 10 लोगों तक इस प्रोग्राम की दावत को पहुंचाए। क्या ख्याल है? मुश्किल काम है? मुश्किल है तो फिर आप थोड़ा सा नीचे आ जाते, अगर मुश्किल नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर चले जाते, लेकिन अगर आप ऊपर नहीं जाते तो कम अज कम 10 लोगों तक इस प्रोग्राम की दावत को पहुंचाना। ये बच्चे भी सुने, बेटे जो हैं और बेटियां जो वहां बैठी हुई छोटी, वो भी सुने, इनकी भी जिम्मेदारी, ये भी अपने दोस्तों तक इस प्रोग्राम की दावत को पहुंचाए। नौजवान, अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने नौजवानों को बड़ा मकाम मर्तबा, और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तहरीक का आगाज फरमाया था, उस तहरीक में सबसे ज्यादा नौजवान थे, सबसे ज्यादा। नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा वो भी इसमें अपना किरदार अदा करें, बुजुर्ग भी सरपरस्ती करें, तो बहरहाल ज्यादा लोगों तक इस प्रोग्राम की दावत को पहुंचाया जाए। और आज अगर मेरे सामने बच्चे समेत 60-70 बुजुर्ग और भाई और इसी तरीके से 100 से ज्यादा ख्वातीन बैठी हुई हैं, तो अगर हम कोशिश कर लें तो ये डबल भी ले सकते हैं, इससे ज्यादा ले सकते हैं। तो 10 लोगों तक तो इस प्रोग्राम की दावत को पहुंचाना है, लेकिन कम अज कम 2-2, 3-3 अफराद को अपने साथ लेकर आना। क्या ख्याल है? मुश्किल है ये काम? आसान है, हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस पर हम सब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।